सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं, कोरोना फ्री हैं, अच्छा खा रहे हैं, घर पे हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं. ओके, you know we have started our second unit, that is human eye. I have sent you some of the videos. Now I have managed the board. Now onwards you will get all the videos made on the board so that you can understand in a best way. So today let's have a quick revision what we have up to do now. In the first or second lectures we have covered what is human eye, structure of human eye, function of all the parts of human eyes. Then we have studied accommodation of human eye. Then we have covered color blindness, color vision, then defects of vision, 4 kinds of defects of vision: myopia, hypermetropia, presbyopia and astigmatism we have done. Myopia is also known as short-sightedness, in which we can see nearby object but cannot see far object. जिसमें हम पास का तो देख सकते हैं but दूर का नहीं देख सकते. That was known as myopia. Myopia को कैसे आप करेक्ट कर सकते हो, that we have studied in the same way. Hypermetropia, जिसमें आप क्या कर सकते हो, you can see far objects, मतलब दूर के आप क्लियरली देख सकते हो बट आपका जो नियर विजन है वो आपका क्लियर नहीं होता है, क्लियरली नहीं देख पाते हो पास के ऑब्जेक्ट्स को. तो उसको कैसे करेक्ट करना है, that we have studied. Then presbyopia we have studied, in which we have studied that presbyopia में आपका जो सफर्ड पर्सन है ना उसको पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है. और ऐसे डिफेक्ट को हम बाईफोकल लेंस से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. बाईफोकल लेंस मींस दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses, convex as well as concave lens. In the same way we have studied about the astigmatism. In this video we will learn about refraction through a glass prism. You know we have studied in refraction through a glass slab. In this we will learn about refraction through a glass prism. That means prism made up of glass. See, this is a prism which is made up of glass. हमने किया था जब when we have studied your chapter refraction. In that chapter we have studied कि refraction occurs when light rays travels from one medium to another medium. This is prism. This is made up of glass, you all know. And glass is rarer medium or denser medium. Rarer medium is, you know, in comparison to air, this is denser medium. This is rarer medium and this is denser medium because this is a transparent medium like your water, glass. I hope we have studied, you remember. So ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है ये. सो ये रेयर मीडियम तो हो नहीं सकता, तो ये एक प्रिज्म है ग्लास का बना हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ग्लास प्रिज्म. तो इसको हमने डेंसर मीडियम लिया है. एंड यू नो जो इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है दैट इज एयर, सो वो है आपका रेयर मीडियम. सो वी हैव 2 मीडियम्स, one is rarer medium and one is denser medium. So you know what is refraction. Refraction is the phenomena of change in the path of light when it travels from one medium to another medium. So suppose this is, अच्छा पहले एक बार थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं. प्रिज्म क्या है, ये हमने एक ग्लास प्रिज्म लिया है, कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं बना है ये, थोड़ा सा और ऐसे बना देते हैं. तो ये दिस इज ग्लास प्रिज्म, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. ये आप देख रहे हो ये ग्लास प्रिज्म की 2 सरफेसेस हैं, AB और AC. ये दोनों ही कैसी सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. जब भी इन सरफेसेस के ऊपर कोई भी लाइट रे आएगी, वो लाइट रे अब उस लाइट रे का पाथ क्या हो जाएगा, इनिशियल पाथ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, या तो ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे चली जाएगी. ठीक है, मतलब AB और AC दोनों ही क्या करवाएंगी, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को
हैपन करवाएंगे री फिनोमिना। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है AB और AC दोनों पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। जस्ट लाइक कि आपके पास ये प्रिज्म है, ठीक है, इसको ऐसा देखो, ये लाइट रे आ रही है, ये मीडियम कैसा हो जाएगा, जो मेरा आप हाथ को समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो प्रिज्म से। ये प्रिज्म के अंदर जब लाइट रे जाएगी तो मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाएगी तो आपको पता है लाइट रे क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। जब वो इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो अगेन क्या करेगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अगेन पाथ को क्या करेगी, चेंज हो जाएगा उसका पाथ। तो आप ये समझ सकते हो, ये जो प्रिज्म है उसमें प्रिज्म की AB फेस और AC फेस दोनों पे ही क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। सो वी वुड राइट AB and AC both are refracting surfaces. Refracting surfaces. That means यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अकर होगा। कैसे देखो, सपोज एक लाइट रे है, वो AB फेस पे इंसिडेंट हो रही है। अब आपको पता है जहाँ पे भी कोई लाइट रे आती है हम वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो सपोज हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये इसको ऐसे जाना चाहिए लाइट रे को। अगर ये अपना पाथ चेंज नहीं करती है ये लाइट रे तो इसको ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके ये कुछ ऐसे जाती है। दैट मीन्स ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था। अगर यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं करती तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो दिस रे विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसका पाथ ओरिजिनली ऐसे ना होके नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है एंड it would be refracted like this path. So this ray is known as incident ray and this ray is known as refracted ray. Now अब ये जो लाइट रे है जो रिफ्रैक्ट हुई है इस ग्लास प्रिज्म के अंदर, अब ये इस प्रिज्म के अंदर तो रहने वाली है नहीं। नाउ इट विल ट्रेवल फ्रॉम प्रिज्म टू द एयर, so it will travel from denser medium to the rarer medium. So अब ये लाइट रे ट्रेवल करती हुई इस सरफेस के ऊपर आ गई है, AC सरफेस के ऊपर। That's why I said AB और AC दोनों ही कैसे सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग, जहाँ पे आपका जो लाइट रे है वो अपना पाथ क्या करेगी, चेंज करेगी, मतलब रिफ्रैक्शन का फिनोमिना वहाँ पे होगा। अब ये लाइट रे है, ये डेंसर से रेयर में जाएगी और आपने पढ़ा हुआ है whenever light travels from denser to rarer medium it bends away from the normal. तो जहाँ पे ये लाइट रे इस सरफेस को इंटरसेक्ट करेगी या इसके ऊपर फॉल होगी वहीं पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, अगेन वी ड्रॉ द नॉर्मल। अब इसको ऐसे जाना चाहिए या फिर ऐसे जाना चाहिए, ये तो हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये लाइट रे ऐसे चली जाती है दैट मीन्स ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, दिस इज डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है लाइट रे की वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द डेंसर मीडियम। सो डेंसर में तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, लेकिन आप देख रहे हो जब ये रेयर में जा रही है डेंसर से रेयर में तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ना कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या कर जाएगी, एमर्ज आउट हो जाएगी इस ग्लास प्रिज्म से। तो आपको पता है ये नॉर्मल था, फर्स्ट नॉर्मल था जो इस सरफेस पे हमने ड्रॉ किया था। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब this is refracted ray, this is again normal, so this angle is known as angle of refraction. अगेन ये इस सरफेस के लिए ये रे क्या है, इंसिडेंट है, तो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं I1, और इस एंगल को आप क्या बोल सकते हो, इसको आप R1 भी बोल सकते हो और इसको आप E भी बोल सकते हो। दिस इज बिकॉज दिस रे इज एमर्जेंट रे। कौन सी रे है ये, एमर्जेंट है। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन के अंदर भी जब हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट किया था। So this is emergent ray. So this angle is known as an angle between emergent ray
एंड द नॉर्मल, आप उसको एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोल सकते हो या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, अगर ये देखो ये आपके इंसिडेंट रे है, इसका पाथ कुछ ऐसे था, फिर नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो गई और अब ये नॉर्मल से अवे ट्रेवल कर रही है, तो इनिशियली इसको कैसे जाना चाहिए था? अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अगर नहीं होता, ये अगर अपना पाथ चेंज नहीं करती, तो आपको पता है ये कुछ ऐसे जाना चाहिए थी, इस रे को ऐसे जाती है, लेकिन ऐसे ना जाके ये कैसे जा रही है, ये तो ऐसे बैंड हो गई, देन ऐसे हो गई। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस, ये मैंने इस ओरिजिनल रे को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया और ये इस जो एमर्जेंट रे है ये इसका पाथ है, अगर मैं इसको यहाँ पे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देती हूँ तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है जिसको बोलते हैं डेल्टा, और आपको पता है डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक चीज और मैंने आपको नहीं बताई, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कितने एंगल्स की बात की हमने? इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ एमर्जेंस। कितनी रेज थी? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस रे इज नोन एज एमर्जेंट रे। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। किसके बीच में है ये एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन है आपकी एमर्जेंट रे को हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया है और जो इंसिडेंट रे थी अगर वो अपना पाथ चेंज नहीं करती तो उसको हमने आगे की तरफ उसको ऐसे जाना चाहिए था। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये एंगल है जो ओरिजिनली आपकी रे की डायरेक्शन होनी चाहिए थी उसके बीच में, और एमर्जेंट रे को अगर आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हो तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल थ्रू विच योर इंसिडेंट रे हैज बीन डेविएटेड। सो आप